In yesterday class, we discussed about maps, globes, advantages of maps over globe, and also we talked about history of map making, where we knew Ptolemy was the first one who made map something like today's map. Okay, now in today's class I will tell you important features of map. So whenever you see any of the map, they are provided with some tools which help us to understand that map. Okay, so map is what? Map is a representation of a earth surface, either whole or a part of it. So whenever we represent any part of the earth's surface on map, we need some help to understand or to read that map. So there are many tools, there are symbols given, there are scales given, okay, there are directions given in the map through which we understand the map. So the first topic that we are going to discuss is scale. Now in the map, a large part of land is represented on a paper. मैप पे हम क्या देखते हैं? एक बहुत ही लार्ज पार्ट ऑफ लैंड पेपर में रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर हम उतने बड़े लैंड को अगर पेपर में एज इट इज ड्रॉ करेंगे, एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे, देन इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं? मैप में स्केलिंग करते हैं. Now, what does a scaling mean? How does scaling help in reading the map? So, every map has its own scale. हर एक मैप की खुद की एक स्केल होती है जो हर मैप के लोअर पोर्शन में साउथ डायरेक्शन में दी गई होती है. Okay, suppose if I'm going to take an example and make you understand how it works. Scaling क्या होती है? Okay, so scaling में हमें ये देखना है कि किस तरह से किसी भी लार्ज पार्ट ऑफ लैंड को मैप में किस तरह से छोटे से पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम उनके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन ग्राउंड. सो व्हाट इज स्केलिंग? Scaling is the process through which we know the relation between the distance of two places on the map with that of the two places on the ground. अगर if there are two places A and B, ये दो places हैं जो मैप में अलग अलग पॉइंट्स में दिखाए गए हैं. ओके, नाउ अगर यहाँ पर मैप की स्केलिंग है that 1 centimeter is equals to 50 kilometer. 1 centimeter is equals to 50 kilometer. Now, if we have to find out the distance between A and B, okay, suppose ये दो places हैं और ये दो places मैप में इतने डिस्टेंस में है. ओके, देन व्हाट विल वी डू? वी विल टेक अ स्केल और हम क्या करेंगे? स्केल से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे. ओके, एंड सपोज द डिस्टेंस कम आउट एज 2 centimeter. Okay, 2 centimeter. Then what will we write here? We will write, if 1 centimeter was 50 kilometer on the ground, अगर ये मैप में जो हमने ये A और B के बीच में डिस्टेंस स्केल से फाइंड आउट किया है और हमें मैप में ये दिया गया है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर, कोई भी दो प्लेसेस 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में है, तो वो क्या ग्राउंड में 50 किलोमीटर के डिफरेंस पे है. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग किस तरह से मैप में स्केलिंग की जाती है. नाउ इन दिस एग्जांपल मैंने क्या बोला है कि पॉइंट A एंड पॉइंट B इज एट द डिफरेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में
मैप में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है और हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1 सेंटीमीटर, मैप में जो 1 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड में 50 किलोमीटर है. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? सो 2 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 2 with 50. देन ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, 100 kilometers. Okay, understood? So that is what scaling is. Understood? So what is scaling? The relation between the distance. Okay, the relation between the distance of two places on map with respect to distance of two places on the ground. Understood? Now let's take one more example. Suppose there are another two places, like if here I have taken two places again, let's say x, y. These are two places, okay? These are what? These are two places and इस मैप की जो स्केलिंग है, मान लेती हूँ मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर. ये मैप की स्केलिंग है. Okay, it is given in map that if you find out the distance between 2 points as 1 centimeter on the map and but that distance will be 100 meter on the ground. अगर आप किसी दो प्लेस की डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो कि ग्राउंड पे कितनी है, तो आप उसे क्या करोगे, पहले मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ योर स्केल. और आपको स्केलिंग क्या दी गई है, दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर. मतलब इस मैप में जो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो 100 मीटर रिप्रेजेंट कर रही है. सो माना हमने कि x और y के बीच की जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की विद द स्केल, दैट इज व्हाट, दैट इज 4 सेंटीमीटर. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, x एंड y पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर है. और ये 4 सेंटीमीटर क्या कर दिखा रहे हैं यहाँ पर, 1 centimeter is 100. Then what is 4 centimeter? 4 centimeter is known as 4 into 100 meter. Then it is 400 meter. Understood? So the distance between x and y on the ground is 400 meter. Understood? That is scaling. If you have any doubts, then you can ask me about scaling. So that's how scaling help us to represent a large part of the area on the map. इस तरह से हम अर्थ सरफेस के एक लार्ज एरिया को हम छोटे से पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, और जितनी कम स्केलिंग होगी मैप उतनी ही बड़ी हो जाएगी. ओके, मान लीजिए स्केलिंग इस तरह की है. सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर ऑन द ग्राउंड. अब मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, यहाँ पर मैं x एंड y ले रही हूँ. ये दो पॉइंट के बीच की जो डिफरेंस है वो माना 100 मीटर है. ओके, ये ग्राउंड में जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है, 100 मीटर है. तो हमें क्या, अगर ड्रॉ करना है, मैप रिप्रेजेंट करना है, इन दोनों प्लेसेस को दिखाना है, तो हमें इन दोनों प्लेसेस के बीच में 100 सेंटीमीटर की डिफरेंस रखनी होगी. तो 100 मीटर की डिफरेंस अगर इसके लिए होगी तो बाकी दूसरे प्लेसेस के लिए भी वैसी ही होगी. तो मैप क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. ओके, सो टू मेक आवर वर्क इजी, टू मेक अस अंडरस्टैंड the concepts clearly or the distance of the places clearly, cartographers, person who are skilled in map making, they prefer what, they prefer small scaling. जितनी स्मॉल स्केलिंग होगी मैप उतने ही ज़्यादा छोटे और प्रिसाइज होंगे, और जितने बड़े मैप होंगे वो हमारे लिए उतना ही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अंडरस्टूड? Now, finding the distance. So, finding the distance मैंने आपको already बताया है that how will you find the distance. So, you don't have to do anything. If there are two places, suppose A and B,
और आपको क्या करने हैं, आपको you have to take one scale and measure the distance between these 2 points A and B. And if this distance is let's suppose it is 8 centimeter, और हमारे स्केलिंग क्या दी गई है, that 1 centimeter is equals to 100 kilometers, 100 kilometer. So अगर आप मैप में जो डिस्टेंस है अगर वो ए 1 सेंटीमीटर आ रही है, तो वो दो पॉइंट्स के बीच की डिफरेंस क्या है ग्राउंड में, मतलब एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर है. बट इन दिस वी कैन से दैट हियर the distance between point A and point B on map is 8 centimeter. मैप में तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है, बट एक्चुअली में जो स्केलिंग की गई है वो क्या की गई है, दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. जो मैप में 1 सेंटीमीटर है उसे हम ग्राउंड में 100 किलोमीटर बता रहे हैं. सो यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन 8 into 100 kilometer is equals to 800 kilometers. Understood? So that's how we find the distance between two points. इस तरह से हम दो points के बीच में distance find out करते हैं. Okay? Now, scale and size of map. So earlier I told you that if the scaling is big, okay, अगर हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्केल्स ले रहे हैं, लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, देन क्या होगी, साइज जो मैप की जो साइज होगी वो क्या होगी, बहुत ही लार्ज हो जाएगी, एंड दैट वुड नॉट बी एन आइडियल वे टू रीड अ मैप. ओके, इस तरह से मैप नहीं बनाई जाती है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to find out the distance between, if you all have books in your home, okay, so go and find out the distance between let's say Kolkata and Jharkhand. Okay, go and find out the distance between Kolkata and Jharkhand in with the help of a scale, and let's refer to that ये जो स्केल दिए हुए होते हैं बॉटम में आप किसी भी मैप के बॉटम में देखोगे, आइदर इन लेफ्ट साइड और आइदर इन राइट साइड, वो स्केलिंग दी हुई होती है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड झारखंड ऑन द मैप. ओके, आपको मैप में कोलकाता एंड झारखंड की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और फिर वहां पर जो स्केल दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कोलकाता और झारखंड के बीच के डिस्टेंस कितनी है. ओके, so this is your class work, and next step is we'll talk about directions. So every other map, either in left direction or right direction, upper left or upper right direction, there is a sign, like मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की साइन होती है. ओके, वन सेकेंड, मैं आपको यहाँ पर देखिए इस तरह की साइन होती है. यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह की किसी भी मैप में इस तरह की डायरेक्शन, ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑलवेज मेंशन ऑन द मैप. ओके, मैप में नॉर्थ डायरेक्शन ऑलवेज मेंशन होते हैं, आइदर इन राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में, सॉरी, आइदर इन लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों में से किसी भी साइड में ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट upper portion of the map represent the north direction. जो मैप की जो upper part होती है, like here it is the upper part of the map, so it is representing north direction, and opposite of it is south direction, and the direction which is right to the north के right में, मतलब इस side, north के right में जो direction होगी वो क्या होगी, ईस्ट, और नॉर्थ के लेफ्ट. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन, एंड दीज फोर डायरेक्शन आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स. इसे क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ओके, सो इन अ मैप
every time north direction has been mentioned in the upper right side or left side, okay, और north के just opposite lower portion में bottom में south direction होती है, and in the right side of the north direction east direction is there, and in the left side of the north direction there is a west direction. Okay, are you clear about this? Okay, now कुछ और डायरेक्शंस होती हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, वो क्या होती हैं, लेट्स फाइंड आउट. ओके, लेट्स फाइंड आउट और कौन सी डायरेक्शंस होती हैं. सपोज मैंने लिखा नॉर्थ. ओके, this is north and the bottom side is south. The direction in the right side of the north is east and the direction in the left side of the north is west. ये हमारे हो गए कार्डिनल पॉइंट्स. द मेन डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स ऑन द मैप. मैप में कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑल द मेन डायरेक्शन जो हमें पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. But what happens if it is not exactly, what happens if a place is not exactly in this position? अगर कोई place exactly इस position पे नहीं है, इस position पे है, then हम उसे क्या कहेंगे? अगर इस पोजीशन पे देन हम उसे क्या कहेंगे, इस पोजीशन पे देन हम उस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, और इस पोजीशन में तब हम क्या कहेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट द इंटरमीडिएट डायरेक्शन. अब इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होती है? द एरिया which is midway between north and east is known as northeast. It is northeast. इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. सपोज कोई प्लेस यहाँ पर है, ओके, देन वी विल से दैट इट इज ऑन द मैप, इट इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ओके, बिकॉज हमारे लिए किसी भी प्लेस को, अगर मैं आपको बोलती हूँ आपके घर, आपकी जो घर है, सपोज आपके घर यहाँ पर है, ओके, you have to go 1 kilometers. Okay, you have to go 1 kilometer to your school. आपकी जो घर है वहां से आपकी जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है. बट आप 1 किलोमीटर तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो. यू कैन गो टुवर्ड्स ईस्ट, यू कैन गो टुवर्ड्स नॉर्थ, यू कैन गो टुवर्ड्स साउथ. ओके, आप 1 किलोमीटर तो किसी भी डायरेक्शन में जाओगे. बट अगर मैं बोलती हूँ दैट योर school, okay, the distance from the home and school is 1 kilometer, तो आप अपने घर से क्या करोगे, you will find, you will know the direction that 1 kilometer north. तो आप अपने घर से निकलोगे किधर, नॉर्थ की तरफ 1 किलोमीटर. देन यू विल easily find out that place, you will easily find out your school. okay, so direction is very much required when we read a map. हम क्या, जब भी मैप्स पढ़ते हैं तो डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. And what happens if a direction, if a place is in between north and west, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर कोई प्लेस है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो डायरेक्शन क्या होगी, क्या वो नॉर्थ और वेस्ट दोनों होगी? जी, उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट. उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट. What happens if a place is in between east and south? Then we will say south east. Okay, and if a place is in between south and west, we will say south west. Okay, northeast northwest, southeast southeast southwest. Understood? So these are the intermediate direction. इसे हम क्या कहते हैं, intermediate direction कहते हैं. Okay, चलिए guys, if you have any issues then you can ask me in the subject group. Okay, yeah, so we have knew that how we will find out the distance, how we will know the direction of direction on the map. So yeah, so next step is what if there is a direction. मैंने आपको यहाँ पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन दे दिया है. इफ देयर इज अ पॉइंट हियर, यहाँ एक प्लेस है. अब मुझे क्या करना है, ये प्लेस कहाँ है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. देन व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट पुट दिस एरो लाइन इन बिटवीन दिस.
अब आपको मैंने बताया था दैट बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट, इफ देयर इज अ प्लेस हियर, वी विल से दैट इट इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ये किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है. अंडरस्टूड? Is that clear? Okay. So that's how we find out the distances. We knew these are the very helpful tools which are given on a map to make us understand the map clearly. इससे हमें map क्या बहुत ही अच्छे से समझ में आता है. और yeah, so this is it for today's class, and still if you have any doubts then you can ask me in the inbox section, as I have already said. So ask me if you have any doubt. Otherwise you have to find out the distance. Okay, you have to find out the distance between Kolkata and Jharkhand on the map, and then according to the scaling you have to tell me what is the distance between these two places on the ground. मैप में जो आप प्लेस की पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करो, उसे स्केल से पहले मेज़र करो, और उसके बाद आप उसकी स्केलिंग देखो. अगर देखिए इस तरह की स्केलिंग है, लाइक यहाँ पर मैं आपको शो करना चाहती हूँ, इस तरह की स्केलिंग हमेशा मैप के बॉटम में दी गई होती है. ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर 0 to 1 मतलब 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, स्केलिंग 2 की डिफरेंस में है. मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए 0 to 1 मतलब 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 किलोमीटर्स है. ठीक है, और अगर 2 सेंटीमीटर होगी तो 4 किलोमीटर्स, और 3 सेंटीमीटर हुई तो 6 किलोमीटर्स है. ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, स्केलिंग को समझना है, और उसके बाद कोलकाता एंड झारखंड की डिस्टेंस आपको मुझे बतानी है इन द इनबॉक्स सेक्शन. बट रिमेंबर दैट यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द सब्जेक्ट ग्रुप. आपको सब्जेक्ट ग्रुप में मुझे आंसर करना है. ओके, एंड ऑल्सो आपने कहाँ से किया है आप मुझे उसके पिक्चर भी सेंड करोगे, क्योंकि आप सभी के बुक्स में या आप घर में किसी के भी बुक में इंडिया की मैप तो ज़रूरी होंगी, पॉलिटिकल मैप, तो आप वहाँ से कर सकते हो.